back unare haturu kali eti bega wali dudu eti soabor soananu bubakera hitrine eti ama sangarmone bopini etuan opportunity iyo toda rasuludi seroti mo sanmadador back sanmadat mo sidu murodu tare arobar julu janganor যাই হোক এটি ইয়ো ব্যাক 19 জাতির মিলয়ে বাংলাদেশের সেনা শাসন ইন্ডিজিনাস আদিবাসী উপরে তারা অত্যাচার করবেন দীর্ঘ বছর ধরে আদিবাসী রয়ন তারপর শুধু মৌলিক অধিকার নবাদন এটি তারা ইচ্ছে মতো যাবেও নরে মা বোনও নরে তারা সে যেটাকে শাসন সেটাকে ইচ্ছা মতো করদন তারা দেশর মৌলিক অধিকার আমি নিন্দে জানে মুই নিন্দে দেওয়ান ব্যক্তি আমার কথা সাংবাদিক তো নিন্দে জানে সেটাকে সেনা শাসন দরকার নেই মৌলিক অধিকার আমার চাই যদি প্রয়োজন হয় আমি তারারে আরো দুঃখ দিব এতে দুদুর দুঃখ দে আরো দুঃখ দিব হাজে বাংলাদেশত যেই 19 জাতি আগো স্পেশালি মুই সাংবাদিক তরে হমতে তুমি থালে বেতালে নয়নি আমি তোমারে জিদ্দুর ভারে বলা বলদি এদাল দি তুমি এগতর তোমাতে আমি গান্ধী আনলি তুমি হুজুর উঠতে হি গর তুমি আমি যে তোমারে বলদি তোমার ভক্ত হুজুর যাইলো তুমি চলো দেও তোমার বিবেক হুজুর গিয়ে আর হদ মানে মানিবা দাঁত মানিবা দাদি দাদি এগতর তুমি যদি এগতর হইল আর তুমি হন জায়গাতে স্থান নেবা তোমার সেই স্বভাব সারি ফেলো নিজ ব্যক্তি স্বার্থ দূর করো ব্যাকুলরে আন্দোলন চুয়ার তোমার বিজেপি বহুত মানুষের জানর ভবিষ্যৎ করি রই 19 জাত এতে তুমি ছাও ইয়ো বুয়ার দ্বারা জাত ভোট পেনি নিজ ব্যক্তি স্বার্থ দাদি দাদি এগতর ব্যাক কুনি বিজা সদানো মুই তোমাতে ইয়ো সময় সংকীর্ণ আর বাকি গুণে হবা আরেকবার সিদম রতুন বোয়াগারানে হাতুরুতুনু আর আমার সাংবাদিক ব্যাক জাতুন বাংলাদেশের সেনা শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি 71 হবা মৌলিক অধিকার আজিল করি ফারিবা এই আধারাগান আর আমার আমি চিটাগাং হিল ট্র্যাক সাথে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করি পারি এই আজাদতে আমি চিটাগাং হিল ট্র্যাক সব বিরুদ্ধ যাবে এখন উনি তো ভুলি বিরুদ্ধ এখন আমি এই আমার ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবেছে তুমি 71 তোমার সব পরিবর্তন করো 71 আমি দিদুর ভারে দাদির বংশীর আমি হয়তো তোমার দিদুর হানিবাড়ি কিন্তু হিতা হানিবাড়ি দাদকে হানিবাড়ি তুমি সিধুর হানি মারার বুঝির মারার তুমি কিন্তু তালা বলি কর দাদি 71 সেও ভিত্তিতে তোমার মানুষে পঞ্জভারণ রুজিয়া দেন জিরুবা গলে কোন একদম শেষ পর্যন্ত মই যদি ইয়ে না আগে আমি এই আমার এই আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে আইনগতভাবে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্স ভারতের অন্তর্ভুক্ত গরি ভারী এই আজারাগান আর ই আধার আগেনি সে ব্যাপারে আমার বুবাকারা যাতে আরবের অন্তর্তে মোহাম্মদ সনতে তারে মসজিদ মুরতুন আমার সমাজত তুন দারে মুই আর বাদুদু জানাল ফাতুর করে ব্যক্ত হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের ম্যাডামকে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য এখন আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন মাইনরিটি সেলের ইনচার্জ শ্রদ্ধেয় শাহ আলম মহোদয় ওনাকে অনুরোধ জানাবো আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আসসালামু আলাইকুম নমস্কার খুলুমখা মঞ্চে উপস্থিত আমাদের ইতিহাস
আমাদের মা বাবার পর আমরা যে শিক্ষাটা পাই, আমরা ওই শিক্ষাটা আমাদের মহারাজ থেকে পাই। তো আমি আপনাদের কাছে কিছু কথা বলবো যে আমরা কিছুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে খাগড়াছড়ি, আমাদের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের উপর কিছু আক্রমণ হচ্ছে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলছে, স্থায়ী সরকার নয়, এমার্জেন্সি সরকার যেটাকে বলে। তো ওইখানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস আপনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল সম্প্রদায়ের লোককে আশ্বাস দিলেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বাংলাদেশের চিত্রটা আমরা কিছু অন্য রকমই দেখতে পাচ্ছি, যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা আছে তাদেরকে সেভ করতে পারছে না। প্রত্যেকদিন প্রতিনিয়ত কোন জায়গায় না কোন জায়গায় মাইনরিটিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তো আমি বলবো, আমরা ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি, ওই বাংলাদেশের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ভাইদের উপর অত্যাচার আমাদের চেয়ে কেউ বেশি ব্যতীত হবে না, কারণ আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি। তো আমরা বাংলাদেশ সরকারকে বলতে চাই, যেহেতু বাংলাদেশ সরকার আপনার 90% ইসলামিক কান্ট্রি, আমরা ইসলামিক কান্ট্রি হলে কুরআন হাদিসে একটা কথা আছে, কুরআনের সূরা মায়াতে 32 নম্বর আয়াতে, যে যদি কোনো একজন মানুষকে হত্যা করে সে পুরো সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করে। আমি আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে বলতে চাই যে আপনারা এই মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হয় সেখানে স্বৈরাচারী সরকার বেশি দিন থাকে না, কারণ আপনার সংখ্যাগুরুরা কখনো মাইনরিটিদের উপরে অত্যাচার মেনে নেয় না। কিছু পার্সেন্টেজ একটা সমর্থন করলেও সংখ্যাগুরু যারা থাকে তারা কখনোই মাইনরিটিদের উপর অত্যাচারকে সমর্থন করে না। তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে বাংলাদেশের এইসব অত্যাচার আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে, বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর নতুন ইমার্জেন্সি সরকার গঠন হয়েছে। আমরা অনুরোধ জানাবো যে বাংলাদেশ সরকারকে, যে বাংলাদেশে যেন কোনো একটা মাইনরিটি বাইরের উপরে আক্রমণ না হয়, তাদের বাড়িঘর জ্বালানো না হয়। আমরা ভারতবর্ষের মুসলিমরা, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমানরা আমাদের বাংলাদেশের সেই সমস্ত মাইনরিটি সম্প্রদায় ভাইদের সঙ্গে কনসেপ্ট খেলা থাকবো, মৃত্যু পর্যন্ত খেলা থাকবো। আমাদেরকে পাবেন, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছে না বাংলাদেশে এইসব অত্যাচার, আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমি আপনাদের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে যে এখানে অনেকেই অনেক জায়গা থেকে এখানে এসেছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। মহারাজা লংলে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাইনরিটি সেল ইনচার্জ শাহ আলম স্যার মহোদয়কে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য। হাই না হাই তাবো চিনি সাকা কক্ষাই লাগ নাই বচেন করকসাই খানা নাই চিনি টাকার জ্বালানি চিনি পবিত্র বিধানসভানি এমএলএ বরঙ্গানা স্যার বিশ্বজিৎ কলাই আমি আপনাদের কাছে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এখানে অনেকেই অনেক জায়গা থেকে এখানে এসেছে। চিনি বুবাক রানা বেলে হাম্বাইয়া ফেরো চিনি সাফরুম কাইসা চিনি বাংলাদেশ সরকারনি খানি চিনি আওয়াজ চিনি মুভমেন্ট চিনি বসকালনি দিননি বাংলাদেশের যারা তংনাই রক
borok ni sep dini bagai borok ni lama kahagai tongmanan bagi Bangladesh amani bagi tini sapurmo tongmayo je ei Bangladesh sarkar no orun hadir jeng awas lohoro bukto makanya minority proti অত্যাচার খাইমানে হত্যা খাইমানে বক্ত মাখাইমানে কাজে তিনি যত ফাইনাল যিনি অনারেবল চিটিআইডি সিনি সিএম তাই যিনি যত ইএম এমএলএস মিনিস্টার তাই যত যিনি বুদ্ধিস্ট নি তাই যিনি যত মাইনরিটি নি ফাইনাল তাই স্পেশালি থ্যাঙ্কস মালিও তিনি যিনি পান্দানো অর্গানাইজ খাইনারে যিনি YTF ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন বনমনা সুরজ নি নেতৃত্বে তিনি নো পান্ডা তিদো জাগো আঙ্গনা বেলাই বেলাই হামবাইয়া ফারো বন বেলাই হামবাইয়া ফারো তাই যিনি বুবাগ্রানত যিনি বখাবাই যতবাই যত ওয়াংসবইনা जों তিনি নেতৃত্বে ন বুবাগ্রানি কুমজুরানি অন্থ বুবাগ্রানি হামজাক মানো जों তাই বুকো আখাই লামানের বাগিনো তিনি অ দত হাই বাগিনো তিনি সাকসেসে মুসে মজালো তিন নরক সাইমানো যে থাঙ্গাই 2-2.5 মাস সময় যে বাংলাদেশের সরকার কথা খেমাইয়া হলো যে অস্থায়ী সরকার কথা খেমাইয়া হলো এই বাংলাদেশের যারা যিনি মাইনরিটি হিন্দু যারা বুদ্ধিস্ট যারা খ্রিস্টান তমেরটি প্রতি আক্রমণ জনানি চেঙ্খা ইভেন শুধু আক্রমণ চিনিয়া তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে যে বাংলাদেশে আমাদের যে মাইনরিটিরা আছে তোমরা বাংলাদেশে মাইনরিটি হতে পারে এই রাজ্যে কিন্তু মাইনরিটি নয় এটা আমরা তাদেরকেও স্বীকৃতি দিতে চাই তাদেরকেও বলতে চাই আপনি কোনোদিন এই বাংলাদেশের এই অহিংসা এই সরকারের প্রতি কোনো মাথা নত করবেন না বন্ধুগণ আমরা বলছি এখান থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্য আছে আমাদের ওইখানে যারা মাইনরিটি হিন্দু আছে বাঙালি আছে বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টানরা আছে এই রাজ্যে কিন্তু তারা মাইনরিটি নয় এটা বাংলাদেশ সরকার তা জেনে রাখুন এই অস্থায়ী সরকার জেনে রাখুন এই রাজ্যে এই ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দু মেজরিটি রাষ্ট্র ওইখানে মাইনরিটি হলেও এখানে মাইনরিটি নয় কাজে বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে বড় মাথা নাই তিনি যে একটা হিউম্যানিটি মানুষ আছে সবাই একটা হিউম্যান রাইটস আছে বেঁচে থাকার সবাই অধিকার আছে এই বেঁচে থাকার অধিকারকে আপনি হরণ করতে পারবে না আমি যেখানে থাকো বাংলাদেশে থাকো ইন্ডিয়াতে থাকো আমি সুইজারল্যান্ডে থাকো আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে তাকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না এটা আমরা মানতেই পারবেন না বন্ধুগণ আপনি একে মানবেন আমরা কিন্তু মানতে পারবেন না তার জন্য আজকে আমাদের মহারাজ প্রদীপ কিশোর মানিক্য বাহাদুর তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এখানে আমরা সমাবেশ করতে বাধ্য হয়েছে তার জন্য আমরা সমাবেশ করতে বাধ্য হয়েছে মাস রেলি করতে বাধ্য হয়েছে কেন আমরা করতে হয়েছে বাংলাদেশে যারা অসুরক্ষিত এখন ভুগছেন তাদের প্রতি আমরা সহানুভূতিটা দেখাতে হবে তাদের প্রতি আমাদের এখানে আমাদের আওয়াজ উঠাতে হবে যদি তারা আমাদের এই মাইনরিটি ভাই বোনকে হত্যা করা বন্ধ যদি না করেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হিন্দুদের বাড়ি গিয়ে মাইনরিটিদের প্রতি বাড়ি গিয়ে তারা কিন্তু কি করছে ঘর বাড়ি জ্বালানো হচ্ছে এই চক্রান্তকে বন্ধই করতে হবে আপনি যদি বন্ধ করতে না পারেন তাহলে সরকার থেকে চলে যান এই অস্থায়ী সরকার আমাদের দরকার নেই এই অস্থায়ী সরকারের প্রতি আমাদের আওয়াজ উঠাতে হবে কাজে আমরা একসাথে থানচার মধ্যে থাকতে হবে এই থানচা আগামী দিনে আমাদের সমস্ত কিছু এই রাজ্যের শুধু নয় এই ভারতবর্ষের মধ্যেও আমরা কিন্তু এক্সাম্পল হয়ে দাঁড়াতে হবে এই রাজ্যের ত্রিপুরা এবং মাইনরিটি যারা আমাদের ত্রিপুরা ভাই বোন যারা চাকমা আছে বুদ্ধিস্ট আছে খ্রিস্টান আছে আমরা কিন্তু থানচা হয়ে এই একটা অরাজ্যকতার প্রতি অরাজ্যকতার যে এগেন্সে আমরা কিন্তু আওয়াজ উঠাতে হবে তাই আমি আর বেশি কথা বলবো না আমরা বিশ্বাস করি এই রাজ্যের মানুষ কি বাঙালি বলুন কি ত্রিপুরা বলুন সবাই এই যে অরাজ্যকতার বিরুদ্ধে সবাই আওয়াজ তোলার জন্য এখন সবাই প্রস্তুত তা কিন্তু আমরা এখান থেকে শুরু হয়ে
বেশি দূর নয় বাংলাদেশ, এখান থেকে বাংলাদেশ বেশি দূর নয়। আমরা এখানে প্রোগ্রাম করছি, আমার আওয়াজটা বাংলাদেশিকে অলরেডি পৌঁছে গেছে, আপনাদের আওয়াজ অলরেডি বাংলাদেশে পৌঁছে গেছে। আর কোনোদিন আমরা সহ্য করবে না, আর কোনোদিন আমরা সহ্য করবো না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কোনদিন চুপ করে বসে থাকবো না। তার জন্য আমাদের মহারাজ আওয়াজ দিয়েছেন, একসাথে আমরা লড়তে হবে, আগামী দিনে একসাথে আমরা চলতে হবে। তাই বলে আমার কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সব করেছি। থ্যাংক ইউ। বেলাইনো হামবাই sini tagal jolani khasuk sa borongana eure sa bisojit kolejo sini sakal monoksai lalu pani bagai tabok sini sakal monoksai khana nai sini diparai sini borongana sa bisojit sini sel minister kono koi nai sini sakal monoksai lalu bagai ডিস্ট্রিক্ট পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বেগম শ্রেষ্ঠ কামারি বাগে বর্ণ বেলে এখানে মুম্বাই। আজকে আমাদের এই রেলিটা হচ্ছে, আমরা জানি 2-3 সপ্তাহ আগে বাংলাদেশে আমাদের যারা হিন্দু ভাই বোন আছেন, যারা বুদ্ধিস্ট আছেন, যারা খ্রিস্টান আছেন, তাদের উপরে হামলা হয়েছিল, এমনকি হত্যাও করা হয়েছিল। এই হত্যা এবং হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে আমরা এই সাবরুমে আমরা বড় একটা রেলি করেছি আমাদের মহারাজা লিডারশিপে। আমরা এখান থেকে ত্রিপুরা তথা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে আমরা এটাই বলতে চাই যে আমরা ভারতে থেকেও আমাদের মাইনরিটি ভাই বোন যারা বাংলাদেশে আছেন, চিটাগাং হিন্দুসিকে আন্ডারে আছেন, তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করছি এবং আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, সেটা প্রমাণ আছে এই জনসভা। আপনাদেরকে ওইখানে যতদিন পর্যন্ত আপনাদের উপরে শাসন করা হবে, শোষণ করা হবে, হত্যা করা হবে, এখানে আমরা আমাদের ভূমাগরা আমাদের মহারাজার লিডারশিপে আমরা সবাই একতা হয়ে, ঠান্ডা হয়ে, ইউনিটি হয়ে আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন, আমাদের হিন্দু, আমাদের বুদ্ধিস্ট এবং আমাদের খ্রিস্টান ভাইয়ের জন্য আমরা সদা রেডি আছি এবং তৈরি আছি। যদি আপনারা বন্ধ না করেন তাহলে আমরা সবাই রেডি আছি, এটাই প্রমাণ আজকের এই জনসভার মাধ্যমে। সুতরাং আমরা এটাই বলতে চাই আজকে এই সাবরুম মাঠে দাঁড়িয়ে যে বাংলাদেশ যে নতুন সরকারকে এটাই বলতে চাই, আপনারা আমাদের হিন্দু, বুদ্ধিস্ট এবং মুসলিম এবং আমাদের যে খ্রিস্টান ভাইরা আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন, তাদের প্রতি যদি আপনারা সহানুভূতি যদি না দেখান, তাহলে আগামী ভবিষ্যতে আজকের এই র্যালি থেকে আরো কঠোর আন্দোলনে আমরা তৈরি আছি আন্দোলন করার জন্য। যদি প্রয়োজন হয় আমরা রক্ত দেব, তবু আমরা আমাদের হিন্দু
আমাদের এখানে খ্রিস্টান এবং আমাদের বুদ্ধিস্ট ভাই বোনের জন্য আমরা রেডি আছি, সেটাই আমরা আজকে প্রমাণ করছি আমাদের বোমাগ্রাম লিডারশিপে। সুতরাং আপনারা সবাই রেডি আছেন তো? সবাই রেডি আছেন তো? কোনো ভয় নেই, আমরা সবাই রেডি আছি। আমাদের হিন্দু, আমাদের বুদ্ধিস্ট এবং আমাদের খ্রিস্টান ভাইরা যারা বাংলাদেশে আছেন, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমরা রেডি আছি আমাদের বোমাগ্রাম লিডারশিপে আপনাদের সাথে সলিডারিটি এবং আপনাদের সাপোর্টে আছি। আপনারা ভয় পাবেন না, আমরা রেডি আছি। তাগুলো বকুরক যতন তিনি হামবাই মারিও যে আছে হাতল হাতল নিফাই বোমাগ্রাম লগি নারে বাগি ফাইটারি বাগি দরনা পাইফলায়া হামবাই তিনি অজাগাতে বাংলাদেশে বাঙালি চিনি হিন্দু বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান ভাই বোনরको जों सापोर्ट खालामनो बागै सलिडारिटी फोरोंनो बागै जों दिनै अराव फाइबारि बागै दरंग जतन फाइफलाया हामबाय नारेगै आनि किसिजा करनार मारि ननि बिसोरा गरना हामबाय বোমাগ্রামকে লতানাকি বলে না হামবাय जतन खुलुबायका बेलायनो हाब्बाय जोंनि सार बिश्वजित देवबर्मा जोंनि स्टेट मिनिस्टार যিনি সারা পক্ষে সেই খানার মানি পাবে। এখন আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা অর্থাৎ আমাদের বোমাগ্রাম যিনি আমাদের মহারাজ অন্যতম মহারাজ যিনি সারা পক্ষে What authorities? Ang puilana daratno khulungmas tangya bharat khulungkha jotana সবাইকে নমস্কার জুজু जी भाई जनरली मैं लिख के नहीं आता हूं अपना भाषण देने के लिए, लेकिन आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। उससे पहले हमारे जो एमएलए, मिनिस्टर्स, वाईटीएफ लीडर्स, सीएम, ईएम, टीडब्ल्यूएफ, हमारे माइनॉरिटी सेल के लीडर शाह आलम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे जो चाकमा कम्युनिटी के हेड्स हैं, मोक कम्युनिटी के हेड्स हैं, माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। सब इनको भी एक बड़ा ताली दीजिए। और सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ में सब रूम में आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा में जब से बांग्लादेश शेख हसीना का सरकार गया है, त्रिपुरा में किसी ने अपने माइनॉरिटीज के साथ एक रैली भी नहीं किया है सॉलिडारिटी देने के लिए। ये पहला रैली है, साबरूम में है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने आप को भी थोड़ा सा ताली देकर अपने आप को भी क्रेडिट लीजिए, क्योंकि ये पहला रैली है। यहां में मैं 2-3 चीज बहुत जरूरी बात है मैं बोलना चाहता हूं। आज मैं यहां में त्रिपुरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं आया हूं। आज मैं यहां महाराजा का परिवार, जिस परिवार का संबंध ब्राह्मणबाड़ी, कुमिल्ला, खागराछड़ी, चिटगांव सब जगह में जहां में हमारा राज था, उस परिवार का सदस्य बन के मैं यहां आया हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे ही लोग जो आज से 70 साल पहले त्रिपुरा का एक अंग था, आज उनके घर को जलाया जा रहा है, उनका मंदिर को जलाया जा रहा है, उनका चर्च को जलाया जा रहा है, उनका खेत में
उनको मारा जा रहा है, उनका घर को जलाया जा रहा है और हम लोग सब इंडिया में चुप बैठे हैं। मुझे दर्द लगता है क्योंकि हमारा कनेक्शन इस बॉर्डर के उस पार सिर्फ 50 साल 60 साल का नहीं है, हजारों साल पुराना है और हमारा दिल के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है जब हमारे लोगों को मारा जाता है। और जब मैं हमारा लोग बोलता हूं, इसमें हिंदू बंगाली भी है, इसमें बुद्धिस्ट चकमा मग भी है, उसमें अपना बुकुंबारा तिपरासा भी है, गारो भी है, खासी भी है, मणिपुरी भी है, हमारे मुसलमान भाई बहन भी है। ये त्रिपुरा का कल्चर नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है। महाराजा ने एक कल्चर बनाया त्रिपुरा में। उस महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया, पूजा के लिए मस्जिद बनाया, मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया, क्रिश्चियन के लिए जगह भी दिया, क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया। यह हमारा त्रिपुरा का कल्चर है। लेकिन आज मैं क्या देखता हूं, बांग्लादेश में जिस लोगों ने, जिस देश हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डंडा मार के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को पैदा किया, आज वही देश हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है, बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यहां में हमको जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बेइज्जती करता है, जब बच्चा बदमाशी करता है, तो कभी कभी बच्चे को 2 चाटा भी मारना चाहिए उसको लाइन में लाने के लिए। यहां में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा परंपरा क्या है? हमारा परंपरा है कि हम पूजा करें, बुद्ध भगवान का आदर करें, क्रिश्चियन को इज्जत दे। मुसलमान भी आज त्रिपुरा में हमारा जो मूर्ति है उसका रक्षा करता है और राजबाड़ी में भी नमाज पढ़ा जाता है। ये हमारा कल्चर है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है। लेकिन ये लोग किसी का परवाह नहीं करते। बांग्लादेश को पूरा जिंदगी शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान को माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा था भाषा के लिए, जब भाषा के नाम में पाकिस्तान ने बंगाली लैंग्वेज को दबाने का कोशिश किया, तो वहां में शेख मुजीबुर रहमान आंदोलन किया। अकेला कभी नहीं कर सकता था अगर इंदिरा गांधी का सपोर्ट नहीं होता, इंडिया का सपोर्ट नहीं होता। उस देश ने इंडिया के सहारे, त्रिपुरा के सहारे, अगर त्रिपुरा नहीं होता तो मुक्ति वाहिनी नहीं होता। लेकिन आज जिस देश ने उनको सहायता किया, मदद किया, आज वहीं से नारा लगता है कि हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे, त्रिपुरा को कैप्चर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे। कुछ बेवकूफ लोग, कुछ गधे लोग को लगता है कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करेगा। बंदर जितना भी चाहे जंगल का राजा नहीं बन सकता है, वो शेर का राजा है। और मैं यहां में शाह आलम में आपको बोलता हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बांग्लादेश को डंडा मार के सिखाएगा मजहब और इस्लाम क्या होता है। ये जो अटैक्स हो रहा है हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदू बंगाली हो, कुमिल्ला में हो,
नोआखाली में हो, ब्राह्मणबाड़ी में हो, खागड़ाछड़ी में हो, चिटगांव में हो, क्या प्रूव करना चाहता है? क्या प्रूव करना चाहता है? उनको सिर्फ हमारा संपत्ति चाहिए। आज उनको लगता है कि जो उन्होंने 1946 में नोआखाली में किया, जो 1956 में किया, जो 1965 में किया, जो 1971, 81, 91 तब टाइम में किया, 71 में, आज वो लोग वही चीज वापस करना चाहते हैं। मैं इंडिया के गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक बर्दाश्त करोगे? आज अगर हम लोग सब एक होकर, नो हिंदू बंगाली, नो तिपरासा, नो चकमा, नो मॉग, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, एज इंडियंस, अगर हम लोग सब एक होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं एक्सपोज करो बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश भी लाइन में आएगा। बांग्लादेश को एक्सपोज करना जरूरी है। त्रिपुरा से बहुत लीडर्स लोग, बीके रांखल, मेवार कुमार जमातिया, पाताल कन्या, सब लोग यूनाइटेड नेशन जाकर उन्होंने बात किया। मैं चाहता हूं कि हम आज खुद यूनाइटेड नेशन जाकर बांग्लादेश के बारे में बात करें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को आज कैसे टारगेट करके मारा जा रहा है। आज ये बात मैं खुद जाकर बात करना चाहता हूं यूनाइटेड नेशन में। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपको अगर कुछ चाहिए तो मांगो, छीनो मत। अगर आप मुसलमान हो तो दूसरे मजहब का आप बेइज्जती मत करो। ये कोई कुरान में नहीं लिखा जाता है। लेकिन ये लोग मुसलमान भी नहीं है। धर्म के नाम में, मजहब के नाम में ये लोग पैसा कमा रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बांट रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? फिर से बांग्लादेश से मैसेज आएगा, त्रिपुरा महाराजा रे उन्हीं बेशी कथा बोले, उनार मुख बंद करते होबे। महाराजार मुखे बंद करले किच्छु होबे ना दादा, तुम्हार आमी मुखी दिए लात मारबो ना, डांडा दिए तुम्हार लात देबो, डांडा दिए। बहुत हो गया। मैंने आज बहुत चीज देखा है यहां में। हाँ, एक बात है, थोड़ा सा तिपरासा के बारे में बात करता हूं। यहां में पेचातल से लोग आया है, कौरबुक से आया है, जुलाईबारी से आया है, शांति बाजार से आया है, साबरूम से है, ऋषिमुख से है। मैं हमेशा सुनता हूं गंडतीसा से है, रायमा वैली से है। हम हमेशा सुनता है उन्हीं तो चाकमा, आमी तो त्रिपुरा, उन्हीं तो मग, आमी रियांग, उन्हीं तो डेबर्मा, एक तो चाकमा, मग, आमी हाम्बाई बोले, उन्हीं पात्रुत्रु बोले, आमी क्रिश्चियन, उन्हीं बुद्धिस्ट, आमी हिंदू, उन्हीं बुद्धिस्ट, আমি এই সব বলে কেউ ঠান্সা থাকে না, একটা থাকে না। हम सुनता है, हम बहुत सुना। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब 2 हफ्ते पहले चिटगांव में, खागड़ाछड़ी में, बांदरबान में आपको मारा था ना, आपने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोगों को मारा था तो किसी ने जाके पूछा आप चकमा है कि तिपरासा है कि मॉग है? किसी ने पूछा? नाक चपटा देके, आंख छोटा देके मारा ना। लेकिन हम लोग यहां में लड़ता है, और जब हमको मारा जाता कोई नहीं पूछता तुम्हें क्रिश्चियन, तुम्हें बुद्धिस्ट, तुम्हें हिंदू, नहीं, आपको देख के मारा जाता है। लेकिन हम लोग यहां में लड़ रहा है, तुम्हें चकमा, उन्हीं मॉग, आमी डेबर्मा, आमी त्रिपुरा, आमी रियांग। खानसा लाओ, एकता लाओ। जब एकता आएगा, जब खानसा आएगा,
तभी ताकत बढ़ता है, तभी ताकत बढ़ता है। यहां में हिंदुस्तान का फ्लैग है, यहां में हमारा बुद्धिस्ट का फ्लैग है, ये भी मेरे दिल में है, ये भी मेरे दिल में है। त्रिपुरा एक पॉलिटिकल फ्लैग है, ये आएगा जाएगा, हिंदुस्तान और धर्म कभी भी नहीं जाएगा, ये रहेगा यहां। कुछ गलत बात कर रहा हूं? सब लोग बोलता है मीडिया से एक बात आया, मीडिया तो मुझे राक्षस बना के रखा है, लेकिन त्रिपुरा में कौन बात कर रहा है ओपनली मुझे छोड़कर? मैं बात कर रहा हूं, और जो आपके दिल के अंदर है मैक्सिमम आप लोग फेसबुक में लिख सकते हैं। मैं तो ओपन टीवी के सामने खुला मंच में बांग्लादेश को चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे लोगों को छोड़ो मत। नेशनल मीडिया, आज मैंने एनडीटीवी को देखा यहां में, ये नेशनल मीडिया अजीब सा मीडिया है। इजराइल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है रोज टीवी में आता है, रोज टीवी में इजराइल ने ये किया, गाजा में पैलेस्टाइन ने ये किया, यूक्रेन में रशिया में क्या हो रहा है रोज टीवी में आता है, रोज टीवी में। और हमारा पड़ोसी सामने एकदम यहां में हम लोगों को रोज मारा जा रहा है और मीडिया कवर नहीं करता। क्यों? क्या बात है? क्या बात है? आपको विचार करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। ये मीडिया विदेश में कुछ हुआ कवर होता है, उत्तराखंड में फ्लड आया कवर होता है, हिमाचल में फ्लड आया कवर होता है, त्रिपुरा में इतना घर टूट गया, इतना बर्बाद हुआ संपत्ति, मीडिया ने एक दिन भी टीवी में चलाया नहीं। दिल्ली में किसी को परवाह नहीं है, लेकिन आपको परवाह करना पड़ेगा। त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, और त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, और आपको भी हमको फोकस में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का एक अंग है। यहां का जो नागरिक है वो भी उतना ही इंडियन है जो उत्तर प्रदेश में है, जो तमिलनाडु में है, जो बॉम्बे में रहता है, और जो उत्तर प्रदेश दिल्ली में रहता है, उसका भी वही अधिकार है जो त्रिपुरा में रहता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मीडिया महाराजा को तो राक्षस बना दिया, सब नहीं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जो लोग रोज जहर फैलते हैं, आप देखो बदमाश कोई और है। हिम्मत लीडर के पास होना पड़ता है। हिम्मत से मैं आज अपने माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है, हिंदू बंगाली हो, चाकमा हो, मग हो, तिब्बता हो, हमारा जो माइनॉरिटीज है, आज खासी, मणिपुरी, गारो, जैंतिया, कुकी, सबके लिए मैं आज स्टैंड करके फाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा जमीन था, है। और अगर बांग्लादेश ने अपना बर्ताव बदली नहीं किया, सब लोग बोलता है, एक अभी हमारा चाकमा लेडी ने बोला चिटगांव को इंडिया को लेना चाहिए। अरे आज अगर मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोला तो किसी को प्रॉब्लम होगा? आज मैंने किसी भी बोला ग्रेटर त्रिपुरालैंड, किसी को प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले वो महाराजा का, हमारा माणिक्य महाराजा का हमारा रियासत था। 70 साल से किसी और के पास है। और मत भूलो बांग्लादेश का जो अभी मोहम्मद यूनुस का सरकार है, मत भूलो। हम चुप रहे क्योंकि शेख हसीना मुजीबुर रहमान हमारा हिंदुस्तान का दोस्त था, इसके लिए हम चुप रहे। लेकिन अब दोस्त बांग्लादेश छोड़कर चला गया है, और अगर बांग्लादेश के लोग को लगता है कि वो हमको चैलेंज करेगा, तो इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश को बनाया था।
और आज भी इंडिया के पास इतना पावर है कि बांग्लादेश को तोड़कर एक अलग देश बना है। तो आप लोग अपना ये जो हथियार है वापस घर के अंदर रख दो। नेक्स्ट टाइम आप अगर हमारे माइनॉरिटीज के खिलाफ आप कुछ करते हैं, क्रिश्चियन हो जो गिरजा में पूजा करता है, बुद्धिस्ट हो जो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, हिंदू हो, तिपरासा हिंदू हो या बंगाली हिंदू हो जो पूजा करता है मां काली का, उसको भी अगर आपने एक बार छू के देखा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा। ये देश गांधी का है, ये देश बोस का भी है, ये देश स्वामी विवेकानंद का है, लेकिन इस देश में आपके पास सैम मानेकशॉ भी है। ये देश में हम पूजा प्रार्थना शांति करते हैं, हर मजहब का हम प्रार्थना करते हैं, आदर करते हैं। ये देश कबीर का है, लेकिन इस देश में हमारे पास इतना हिम्मत और ताकत भी है कि 10 मिनट के अंदर आपको दिखा देंगे कि आप कहां हैं और हम कहां हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब रूप से बोलना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तिपरा मोथा हो, आईपीएफटी हो, बीजेपी हो, हमको विचार करना है अपना माइनॉरिटीज के बारे जो बांग्लादेश में रोज मारा जा रहा है। हमें सोचना है हमारे औरत लोग, हमारा महिला, हमारा पुरुष लोग जो आज रिंगाई पहन के जाता है तो ये बताइए देखो पासरा देने जाए निकालो। हमारा साड़ी पहनकर टीका लगाकर कोई बंगाली औरत गया तो उसको थूकते हैं, उसके साड़ी को तानने का कोशिश करता है। आप अपने ही देश में, बांग्लादेश अपने ही देश में अपने नागरिक को बेइज्जत कर रहा है। जो देश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, जो देश अपने अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, वो देश टूट जाता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहता हूं कि जाइए, यूनाइटेड नेशन जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन हाई कमिश्नर से बात कीजिए और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर रखिए, क्योंकि पूरा दुनिया को मालूम होना चाहिए, पूरा यूएसए, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रशिया, पूरे दुनिया को मालूम होना चाहिए कि आज बांग्लादेश में वो अपने माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, पीछे में बोलो तो हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ and don't back down. Many people here who want to understand what I am trying to say. कितने लोग जानते हैं डुम्बुर? जानता है डुम्बुर? कितना लोग जानता है काप्ताई? आप लोग जानते हैं ना? डुम्बुर भी त्रिप्रासा को हटाने के लिए किया गया, काप्ताई भी चकमा को और त्रिप्रासा को और नौ को हटाने के लिए किया गया। यहां में हमारे हिंदू बंगाली भाई है, कोई अपना घर प्यार से छोड़कर इंडिया नहीं आया, आप लोगों को मारा गया, काटा गया। ये सब फिर से होगा, फिर से होगा अगर हम लोग जवाब नहीं देते। और जवाब दो तरीके से दिया जाता है, पहले प्यार से बात करो, उसके बाद अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को बोलना चाहिए तुम्हारा बाप आज भी जिंदा है, 2 थप्पड़ खाएगा। देना चाहिए कि नहीं? आवाज कहां गया? देना चाहिए कि नहीं? रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग अपनी तरफ से चिट्ठी लिखो अपने एमएलए को, अपने सरकार को,
पोस्ट कार्ड भेजो प्राइम मिनिस्टर को, मैं भी भेजूंगा, मैं भी चिट्ठी लिखूंगा और प्रेशर रखो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिन तक चुप रहा है, हिंदुस्तान चुप रहा है। हिंदुस्तान को प्रेशर डालो कि वो हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को सुरक्षा दे इंडिया में और बांग्लादेश में। यहां में हमारे मुसलमान भाई है, हम लोगों को जो अत्याचार हमारे हिंदू के ऊपर हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है, क्रिश्चियन के ऊपर हो रहा है, वो बेवकूफी हमको मुसलमान के ऊपर नहीं करना है। हमको वो बेवकूफी नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान से अलग है। हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान से बहुत आगे। आज हिंदुस्तान में एक मुसलमान प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बन सकता है, एक दिन एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन हिंदुस्तान का क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बन सकता है। बांग्लादेश में वो नहीं होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि आज अगर उसको आगे बढ़ना है तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर एवरीवन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो हमको वो बेवकूफी नहीं करना है, हमको दिखाना है कि हम उनसे अच्छे हैं और हम करेंगे। लास्ट में आई वांट टू थैंक एवरीवन। बहुत लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, आपको कष्ट हुआ, लेकिन आज मैं एक मैसेज सब रूम से सबको देना चाहता हूं। मत भूलो, हम लोग सब वी आर ब्रदर्स, वी आर सिस्टर्स। अगर हम लोग एक रहे, आपका लीडर आपके साथ आज भी खड़ा है, पार्टी के लिए नहीं खड़ा है, अपने लोगों के लिए खड़ा है, सत्य के लिए खड़ा है। आप समझो, आप सोचो और आप एक होकर जवाब देना सीखो। लेकिन कुछ नहीं होगा अगर हमारे बीच में हिंसा या एकता नहीं हो, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू दैट लेट अस बी टुगेदर, यूनाइटेड। और अगर आपको सुशासन चाहिए, आपको अच्छा राज्य चाहिए, तो एक संग पहले एक दूसरे को प्यार करना सीखिए, नफरत को हटाइए और मोहब्बत को अपनाइए। उसी से देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। यही मैं बोलकर आई वांट टू थैंक एवरीवन, सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। पत्रद्रु हम भाई and I love you and I love media। मत बंद करिए कैमरा। I love them and I love all my minorities in Bangladesh। ये बात ले जाइए, बांग्लादेश में जो भी अपना माइनॉरिटी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। I love you and मेरा आवाज वहां में जा रहा है। आप इस मीडिया के थ्रू आप मत समझिए कि आप अकेला है, आपके लिए बुबागरा फाइट करेगा, मरेगा और जरूरत हो तो मरेगा भी। थैंक यू, खुलूखा धन्यवाद। पत्रद्रु खुदा